Hey, hello everyone. Welcome to Heritage Gate Architecture. This is Architect Chanda Sinha, your educator. So finally, I'm back, and thank you for all your love and patience. And first of all, I would like to apologize from the bottom of my heart for not being available since 2 months. And see, I was literally ill, and after that, I had some like in January, I was quite busy with some of my own works. So they'll say sorry. But still, guys, you have 15 days for your gate, and we will still rock एग्जाम में एकदम पॉजिटिविटी हाई रखना है सी आपका डेली क्विज हो रहा है ग्रुप में हो रहा है करेक्ट न्यूमेरिकल्स है रतन सर है मृत्युंजय सर है दे आर गिविंग देयर बेस्ट फॉर योर गेट पेपर और एप्टीट्यूड का भी प्रॉपर चल रहा है डिस्कशन राइट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही है बस थोड़े से कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स है तो वो रह गए हैं राइट तो सी अभी तो मैंने जो 2 नए टॉपिक शुरू किए थे लाइक सेक्शन 3 का इन्वायरमेंट प्लानिंग और सेक्शन 5 का अर्बन प्लानिंग राइट तो इन्वायरमेंट प्लानिंग का भी एक वीडियो बचा है अर्बन प्लानिंग का भी एक वीडियो बचा है इन्वायरमेंट प्लानिंग वाला अभी करूँगी और अर्बन प्लानिंग का इसके बाद आएगा एंड आई हैव अ सरप्राइज फॉर योर गेट 2022 और उसके लिए जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड आई नो यू पीपल आर वर्किंग वेरी हार्ड डे एंड नाइट बिकॉज आई कीप ऑन सीइंग ऑल योर queries and solutions in the group तो बस 15 दिन और be positive enough and yeah just with this energy show some of your positive energy in the comment box also and write there hashtag gate हमारा है ठीक है गेट हमारा है करेक्ट सो smash the comment box with this hashtag that gate hamara hai and keep on studying and we all 3 educators are with you and don't worry and let's start this video okay so we were left behind with the main 3 topics that is your nutrient cycling then climatic change and built environment and the third one is the climatic responsive design so let's start with the nutrient cycling so इसमें मेजर जो साइकिल हमें पढ़ना है दैट इज द नाइट्रोजन साइकिल राइट तो लेट्स रीड अबाउट द नाइट्रोजन साइकिल और इससे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न को अगर देखोगे तो देखो बेसिकली इसमें क्या है दैट आवर एटमॉस्फेयर हैज 78% नाइट्रोजन इन द कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर राइट तो 78% हमारा नाइट्रोजन है बट ये डायरेक्टली वी कैन नॉट यूज इट फाइन तो इट इज यूजेबल इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट और ये नाइट्रेट फॉर्म बनाता कौन है प्लांट ठीक है इस नाइट्रोजन को थ्रू मेनी प्रोसेस इट इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट फॉर्म एंड देन we eat plant and this nitrate form that is the usable form is then converted into your animals and other living organisms right तो बेसिकली इस नाइट्रोजन साइकिल में वी हैव टू रीड दिस होल नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस सो लेट्स स्टार्ट ओके सो फर्स्ट सपोज देखो नाइट्रोजन क्या है एयर में प्रेजेंट है राइट नाउ अब क्या होगा कि कुछ प्लांट्स होते हैं दैट इज द लेग्यूमिनस प्लांट फाइन तो कुछ लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं सपोज दिस इज द प्लांट तो इसके रूट्स में व्हाट यू विल सी देयर आर सर्टेन नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर तो दीज नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर आर मेड बाय द बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम क्लियर so this is the rhizobium bacteria which is present in the leguminous plants as in all the pulses which you are using no so these comes under your leguminous plant and there presents the rhizobium bacteria so basically यही rhizobium bacteria जो आपका नाइट्रोजन को यहाँ पर प्लांट के अंदर फिक्स करता है then what happens ये नाइट्रोजन with the help of this rhizobium bacteria will converted into NH3 that is ammonia fine जब ये अमोनिया में कन्वर्ट हो गया
then what will happen? This is known as nitrogen fixation. This is just the nitrogen fixation. Okay. Now after this ammonia, what will form? Your nitrite, NO2 minus. Okay. So this is known as nitrite. Now after this nitrite, it will be converted into nitrate, NO3 minus. So nitrite is NO2 minus, nitrite is NO3 minus with the help of certain bacteria, and these are known as nitrifying bacteria. Okay, these are your nitrifying bacteria, and this whole process is known as nitrification. Okay, I'm writing it here. This whole process is known as nitrification. Correct? Now after this nitrate is again converted into N2. Okay. Now so it started from N2 and now it is being converted into N2 in the last, and this process is known as denitrification. Fine. So once the question was asked in UPSC 2019 that the conversion of NO3 minus, that is the nitrate to nitrogen, is known as denitrification. So the answer was denitrification. And yeah, एक और प्रोसेस है जहाँ पर वापस से N2 में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे तुम्हारे जो जितने भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म है, राइट? Okay, I hope this one is clear. So I am erasing it. देखो जितने भी तुम्हारे डेड एंड डिकेइंग मैटर्स है, ठीक है, सपोज डेड प्लांट्स है और भी जितने डेड एंड डिकेइंग मैटर्स है, सो व्हाट हैपेंस, they get decomposed in the soil, right? So when they get decomposed in the soil, then certain bacteria acts on it. Fine. And this whole process is known as decomposition. So during decomposition, there is some gas which comes out, and that is basically your ammonia, and this process is known as ammonification, right? This process is known as ammonification, and again due to again with the help of some bacteria, this NH3 is again converted into nitrogen and is transferred back to the atmosphere. So two process, first that nitrification and then denitrification, and the second one is this, the decomposition, through which ammonia gas comes out in the process of decomposition, and it is again with the help of some bacteria it is converted back into nitrogen. So basically in the nitrogen cycle you have to read these two method, and even the denitrification, that is the nitrate, is the most usable form, and this was asked in UPSC that nitrate to N2 is known as denitrification, right? तो ये हो गया आपका nitrogen cycle. Now after that you have oxygen cycle. Basically nitrogen ही डिटेल में पढ़ना था, बाकी सारा you just need to know what are the forms in which they are absorbed in the absorbed by the living organism, or it is present in the environment. So first is your second one is your oxygen cycle. Now what is the percentage composition of oxygen in the atmosphere? It's 21%, right? So 21%, and it is fixed mainly through the plants with the help of photosynthesis, right? We consume oxygen, and to maintain the balance of oxygen in the atmosphere, plants photosynthesizes and they releases oxygen throughout this process, right? So ये हो गया. Then third we have is the phosphorus cycle. ठीक है? So next we have is the phosphorus cycle. So phosphorus and sulfur, both of these are basically your sedimentary cycle. Sedimentary means they their cycle, the main composition of their cycle, or the main part of their cycle, it actually exists in the rocky form, right? So they are present in the phosphate
form, and here it's the sulfate form. So phosphate is PO4 3 minus and sulfate is the SO4 2 minus, right? So ये हो गया. हाँ, सल्फर का दो मेन कंपोनेंट है गैसियस फॉर्म में, दैट इज लाइक H2S एंड SO2. तो अगर सेडिमेंट्री फॉर्म पूछ रहा है then we are going to say that it is present in SO4 2 minus, that is the sulfate, and phosphorus का sedimentary form हो गया PO4 3 minus. it actually exists in this state. fine. और अगर gaseous state में पूछ रहा है then we are going to say that it is present in the H2S and SO2 phase, right? So this is basically about your cycles, right? Now let's so here ends your nutrient cycle. Now next we have the topic that is the climate and the built up environment, right? So basically in that we have to read about the climate and weather. Okay, so let's continue. Okay, so now after the nutrient cycling, let's start with the next topic, that is the climate change and the built up environment, right? So basically इसमें हमें क्या पढ़ना होता है, बेसिक्स ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, राइट? तो इसका सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर. ठीक है, सो वेदर इज योर प्रेजेंट डे सिचुएशन, प्रेजेंट डे टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, सारी चीज़ का वैल्यू इज कंस्टिट्यूट्स योर वेदर, लाइक इट्स अ डे टू डे फेनोमेना. आज का सारा टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, एवरीथिंग इज गोइंग टू कंस्टिट्यूट योर वेदर. बट अगर क्लाइमेट की बात करें तो इट इज़ द एवरेज ऑफ ऑल द वेदर ऑफ ऑल द सीजन फॉर लाइक 10 years और 20 years और 30 years. ठीक है, तो अगर इफ वी राइट अबाउट द क्लाइमेट, सो क्लाइमेट इज बेसिकली योर एवरेज ऑफ वेदर फॉर around 30 years. ठीक है, 3 decades और 30 years. Okay, and weather is the present day condition. Okay, present day condition of environment. कि आज का टेम्परेचर क्या है, आज का प्रेसिपिटेशन क्या है, आज की ह्यूमिडिटी कितनी है. सो आप लोग गूगल में देखते होगे ना कि कितना टेम्परेचर है आज का, ठीक है, या फिर कितना प्रेसिपिटेशन है, रेन होगी नहीं होगी, एवरीथिंग. सो दैट इज़ जो आप लोग देख रहे हो, दैट इज़ योर वेदर. बट अगर मैं बोलूँ कि हैदराबाद का वेदर बहुत ही ज़्यादा हॉट है, या फिर चेन्नई में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है प्लस वो हॉट एरिया भी है, सो दैट इज़ योर क्लाइमेट, कि वो हॉट एंड ह्यूमिड एरिया में आता है. ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा क्लाइमेट. बट वेदर इज योर टुडेज ऑल द कंडीशन ऑफ इन्वायरमेंट. ठीक है, देखो बेसिकली क्या होता है कि एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट हमें जानना होगा, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट? ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ climate. So first one is your what? Temperature. Next is your humidity. Now what is temperature? So temperature is the degree of your hotness or coldness, right? Degree of hotness or coldness. ठीक है, next is your humidity, that is the moisture content in air. Moisture, or you can say water content in air. ठीक है, कितना air में water content है, that is your humidity. Third one is your sky condition. ठीक है, now what is sky condition? लाइक कितना आपका स्काई बिल्कुल ही क्लियर है या बहुत ज़्यादा क्लाउडी है. ठीक है, सो दैट एक्चुअली कंस्टिट्यूट्स योर स्काई कंडीशन. फोर्थ इज योर सन रेडिएशन और सोलर रेडिएशन.
सो सोलर रेडिएशन और टेम्परेचर में कंफ्यूज नहीं होना है. सोलर रेडिएशन मतलब कितने इंटेंसिटी से आपका सनरेज आ रहा है, बट यहाँ पर टेम्परेचर इज लाइक कि वो एरिया कितना गर्म है या नहीं. एक्चुअली दीज टू आर इंटर रिलेटेड, कि अगर कहीं पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है तो ऑफकोर्स वहाँ का टेम्परेचर तो ज़्यादा होगा, बट डायरेक्ट आ रही है वो आपका रेडिएशन पे डिपेंड कर रहा है कि उसकी इंटेंसिटी भी बहुत हाई है. राइट, नेक्स्ट आ जाओ. यू हैव विंड डायरेक्शन. ठीक है, विंड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. दिस इज द गोल्डन रूल विच यू हैव टू रिमेंबर थ्रू आउट योर लाइफ, कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर हमेशा विंड की डायरेक्शन रहेगी. राइट, नेक्स्ट यू हैव इज वेजिटेशन. ठीक है, कि किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में वेजिटेशन एज इन कितने प्लांट्स है, कितने प्लांट सपोर्ट हो पा रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया में. राइट, सो दिस ऑल आर योर एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट: टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, स्काई कंडीशन, सोलर रेडिएशन, विंड डायरेक्शन एंड वेजिटेशन. सो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल, कि सपोज अगर मैं बोल रही हूँ कोई एरिया आपका हॉट एंड ड्राई है. ठीक है, वहाँ का क्लाइमेट हॉट एंड ड्राई है. ठीक है, okay, now if I take the example of hot and dry, so see, this is hot temperature and dry condition. So hot means temperature मेरा बहुत ज़्यादा है. dry, देखो कैसे all these elements of climate are interconnected. temperature ज़्यादा है, humidity उस एरिया में बहुत कम है. humidity means moisture and water content. यहाँ पर अगर मैं बोल रही हूँ ड्राई है, इट मीन्स द ह्यूमिडिटी इन दिस एरिया इज लेस, क्योंकि वाटर कंटेंट ही कम है तभी तो ड्राई है. स्काई कंडीशन कैसा होगा? जब वाटर कंटेंट कम है तो क्लाउड्स कम फॉर्म होंगे, तो स्काई कंडीशन कैसा होगा? क्लियर. ठीक है, अब सोलर रेडिएशन पे आ जाओ. मैंने कहा यहाँ पे ये हॉट है. ठीक है, तो सोलर रेडिएशन मीन्स वहाँ पर जो हीट इंटेंसिटी, जो सोलर रेडिएशन की इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है. दैट इज़ वाई इट इज़ हॉट. राइट, अब आ जाओ विंड डायरेक्शन. मैं कह रही हूँ ड्राई है. ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगा तो कैसा होगा? बहुत ही फास्ट विंड डायरेक्शन होगा. ठीक है, अगर मैं बोलती क्लाउडी है तो वहाँ पर विंड डायरेक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर कंटेंट इन द एयर वो थोड़ा सा कम हो जाता. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज योर वेजिटेशन. सिंस इट इज ड्राई एंड हॉट तो ह्यूमिडिटी कम है. ह्यूमिडिटी कम है तो बारिश कम होगी. बारिश कम होगी, that means your precipitation, which is also one of the element, let us write it 7th. तो precipitation कम होगा, ह्यूमिडिटी कम है, प्रेसिपिटेशन कम होगा, तो वेजिटेशन बहुत कम मिलेगा वहाँ पर. ठीक है, तो नाउ यू कैन सी हाउ इट इज इंटरकनेक्टेड एंड जस्ट विद दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट यू कैन वेरी वेल प्रिडिक्ट कि वहाँ पे कैसा कंडीशन रहेगा. ठीक है, ओके ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द अनदर टॉपिक. तो सबसे पहले ये जानते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट जोन्स विच इज देयर ऑन द अर्थ. तो सपोज दिस इज एन अर्थ. ठीक है, अब इसमें जो लैटिट्यूड है जो बिल्कुल मिड से जा रही है लाइन, दिस इज नोन एज व्हाट? इक्वेटर. ठीक है, दिस इज इक्वेटर, 0 डिग्री. क्लियर? अब there are certain other lines as well, chalo, which divides the earth into different zone. So this is your tropic of Cancer. ठीक है, this is tropic of Capricorn. ठीक है, this is your Antarctic circle and this is your, the upper one is your Arctic circle. करेक्ट, इसकी होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ पोजिशन और इसकी होती है 66.5 डिग्री नॉर्थ. सिमिलरली यहाँ पर 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री साउथ, एंड दिस इज साउथ. दिस इज द साउथ पोल एंड दिस इज योर नॉर्थ पोल. नाउ सी, इक्वेटर हो गया ये,
तो ये जो रीजन है विच इज देयर बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सो दिस इज नोन एज योर ट्रॉपिकल रीजन. ठीक है, दिस इज योर ट्रॉपिकल रीजन. सिमिलरली ये भी ट्रॉपिकल. जस्ट बिलो दिस इज योर टेम्परेट जोन, और उसके नीचे क्या होता है, पोलर. ठीक है, ये क्या है, ये भी टेम्परेट है, एंड अबव इट इट्स द पोलर. ठीक है, देखो बेसिकली अब इसका क्या मेन पॉइंट है, इससे टेम्परेचर और सोलर रेडिएशन से कनेक्ट करके हमें पढ़ना है. ठीक है, देखो नाउ दिस इज योर सन. ठीक है, अब यहाँ से सन की रेडिएशन डायरेक्ट आ रही है तुम्हारे इक्वेटर पे, बिल्कुल 90 डिग्री पे. तो यहाँ पे डायरेक्ट इंटेंसिटी, मतलब डायरेक्ट रेडिएशन आ रहा है, इंटेंसिटी ऑफ योर रेडिएशन विल बी वेरी हाई. करेक्ट. पोलर रीजन्स पे इफ यू सी टिल्टेड रेडिएशन जा रहा है, तो वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा इन कंपैरिजन टू द इक्वेटर. ठीक है, तो चलो ये हो गया तुम्हारा टेम्परेचर का. करेक्ट. नेक्स्ट है, अब देखो विंड को कैसे यहाँ पे कनेक्ट किया गया है. ओके, लेट मी चेंज द मार्कर. ये एरिया पे डायरेक्ट इंटेंसिटी आई, डायरेक्ट सोलर रेडिएशन आया, इंटेंसिटी बहुत हाई है. ठीक है, चलो मैं लिखते जाती हूँ, इंटेंसिटी इज हाई. ठीक है, तो टेम्परेचर कैसा होगा, यहाँ पे बढ़ेगा. ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा. टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो यहाँ का एरिया गर्म होगा, वहाँ का एरिया गर्म होगा, तो वहाँ का एरिया गर्म हुआ. ठीक है, तो वहाँ पर जो एयर है दैट विल ऑल्सो बी हीटेड अप. ठीक है, एयर का भी टेम्परेचर बढ़ा. अब एयर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इट हैज़ द टेंडेंसी टू गो अप. ठीक है, अब एयर का टेम्परेचर बढ़ा तो ओके लेट मी ड्रॉ इट हियर. तो इट हैज़ द टेंडेंसी टू गो अप, क्योंकि हीटेड एयर है ना. तो हीटेड एयर मीन्स एयर का प्रेशर कैसा है, लो. तो हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इस एयर का प्रेशर कम है, तो इट हैज़ द टेंडेंसी टू गो अप. करेक्ट. अब जैसे ये ऊपर जाएगी तो ये वाली यहाँ पर जो एयर होगी वो तो हाई प्रेशर पे होगी. क्यों हाई प्रेशर पे होगी, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर इस टेम्परेचर से कम है. ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर कम है, तो यहाँ का एयर अभी ठंडा ही है, और ठंडा एयर मीन्स वहाँ उस एयर की प्रेशर भी ज़्यादा है. तो लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, देखो अब ये एयर ऊपर जा रहा है, बट आई टोल्ड यू कि विंड डायरेक्शन हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो होता है. तो विंड कैसे फ्लो होगा, यहाँ पे ये ऐसे फ्लो होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी वही कंडीशन है जो यहाँ पर है. ठीक है, नाउ आई एम ड्रॉइंग दिस लाइन इन अ टिल्टेड वे, मीन्स जो ये विंड डायरेक्शन का एरो है, आई एम ड्रॉइंग इट इन अ टिल्टेड वे. वाई? दो फोर्स इसके पीछे काम करता है. फर्स्ट इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स. करेक्ट, जिसकी वजह से ये अपने लाइक पास एयर को बुला रहा है. नाउ द सेकेंड वन, जो ये टिल्टेड होने का मेन रीजन है, इज योर कोरियालिस फोर्स. आई एम राइटिंग इट हियर, कोरियालिस फोर्स. नो, व्हाट इज कोरियालिस फोर्स? As we know कि अर्थ इज tilted एंड इज रोटेटिंग इन इट्स ओन एक्सिस, तो उसकी वजह से जो फोर्स क्रिएट होता है, तो विंड का डायरेक्शन बिल्कुल ऐसे कट टू कट स्ट्रेट ना होकर के वो टिल्टेड हो जाता है. ठीक है, नाउ आफ्टर दिस ओके, कोरियालिस फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, चलो अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक जोन क्रिएट हो रहा है. ठीक है, you can see I am drawing the zigzag line. Correct, I am drawing the zigzag line. So this zone is known as ITCZ. ITCZ. So this is intertropical convergence zone. Inter means क्यों, दो जोन, दो डिफरेंट जोन. यहाँ दो डिफरेंट जोन का विंड इस पर्टिकुलर जोन में जो zigzag लाइन है यहाँ पर कन्वर्ज हो रहा है.
तो इंटर मीन्स दो डिफरेंट जोन, ट्रॉपिकल मीन्स ट्रॉपिकल रीजन ही है, और कन्वर्जेंस क्योंकि कन्वर्ज हो रहा है और एक पर्टिकुलर जोन क्रिएट हो रहा है, सो दिस इज नोन एज इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, सो क्या इस एरिया का जो एयर होता है और जो इस एरिया का प्रेशर होता है दैट इज योर लो प्रेशर। क्यों लो प्रेशर? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आई, इंटेंसिटी हाई है तो टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर हाई है, एयर बहुत जल्दी गर्म होगा, ऊपर उठेगा, एंड दिस इज नोन, और वो लो प्रेशर एयर होता है। ठीक है, तो ITCZ लो प्रेशर पे क्रिएट होगा, एंड जो लैटिट्यूड है दैट इज योर 20 to 25 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, तीन चीज बेसिकली इंपॉर्टेंट है, ITCZ, लो प्रेशर, 20 to 25 डिग्री नॉर्थ। क्लियर? ओके ओके, now come to the next topic, that is there are total 5 types of climate. ठीक है, so as per the NBC 2016 India is divided into 5 types of climate. So first is your hot and dry climate. ठीक है, next is your warm and humid. ठीक है, temperate, cold and composite. देखो temperate और composite में एक बेसिक सा डिफरेंस है कि टेम्परेट और यू कैन से मॉडरेट ऑल्सो, इसमें क्या होता है ना, टेम्परेचर में स्मॉल वेरिएशन होता है। ठीक है, बट अगर इफ़ यू टॉक अबाउट द कंपोजिट तो इसमें लार्ज वेरिएशन है। हो सकता है कभी तुम्हारा हॉट एंड ड्राई भी हो सकता है, कभी तुम्हारा बहुत कोल्ड भी हो सकता है वहाँ पर। सो दिस बेसिकली कम्स अंडर कंपोजिट, बट टेम्परेट में एक डिफाइंड वेरिएशन है। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू, एंड डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन दीज टू। फाइन, चलो अब आ जाओ, यहाँ पर सब चीज़ मंथली बेसिस पे डिवाइडेड है, और ये टेबल यू शुड नो बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी गिवन इन NBC 2016. सी, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट मीन्स टेम्परेचर उसका ज़्यादा है। ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा है, इट मीन्स मोर देन, यहाँ पर एक बेसिक क्राइटेरिया लिया गया है 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मंथली टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। Then warm, again it is more than 30 degree Celsius. Temperate, I told you एक defined temperature होगा, तो it is defined under 25 degree Celsius to 30 degree Celsius, right? If I am talking about the cold and composite, तो यहाँ पे it is less than 25 degree Celsius. ठीक है, तो बस 25 और 30 में ही ये पूरा ग्राफ आपका बन जा रहा है कि अगर हॉट है, वार्म है, मोर देन 30, कोल्ड है, कंपोजिट है, लेस देन 25, और टेम्परेट है तो 25 to 30 के बीच में होगा। करेक्ट। अब आ जाओ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। विथ द नेम इटसेल्फ, ड्राई, ड्राई है तो ह्यूमिडिटी कैसा होगा, कितना होगा, कम होगा ऑफ कोर्स। तो कम के लिए अपन लोग लेते हैं यहाँ पे कि 55% से कम है। ठीक है, एक यहाँ पर 55 एज अ स्टैंडर्ड लेकर के वी विल कंपेयर। वार्म एंड ह्यूमिड, ह्यूमिड मीन्स विद द नेम इटसेल्फ यू कैन से यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो इट इज़ in between 55 to 75%, राइट। अब आ जाओ टेम्परेट में, तो यहाँ पर स्मॉल वेरिएशन है और इट कैन बी इवन ह्यूमिड ऑल्सो, बट ठीक है यहाँ पे लेस देन 75। क्लियर। अब आ जाओ कोल्ड में। सो इन कोल्ड यू हैव ऑल वैल्यूज, मतलब यहाँ पे बहुत ही लोअर वैल्यूज से लेकर के बहुत ही ज़्यादा वैल्यूज भी हो सकता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब आ जाओ प्रेसिपिटेशन पे। एज आई टोल्ड यू कि ड्राई है, करेक्ट। तो ड्राई है इट मीन्स यहाँ पे प्रेसिपिटेशन बहुत कम होने वाला है, तो स्टैंडर्ड एक 5 लेकर के देखा गया है कि इट इज़ लेस देन 5। फिर अब आ जाओ वार्म एंड ह्यूमिड। ह्यूमिड मीन्स बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट है एयर में, तो एयर कंटेंट वाटर कंटेंट है एयर में, तो मोर क्लाउड फॉर्मेशन विल बी देयर। जितना ज़्यादा क्लाउड फॉर्मेशन होगा उतना ज़्यादा रेनफॉल होगा, ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होगा, सो इट इज़ मोर देन 75। ठीक है, अब आ जाओ 75 वॉट, मिलीमीटर पर मंथ।
ठीक है, ये सारा मंथली डेटाज है. ओके, ईयरली वाइज ये फिर इंटू 12 हो जाएगा. सो कीप दिस इन माइंड. अब आ जाओ, टेम्परेट है तो लेस देन 5, कोल्ड है ऑफ कोर्स लेस देन 5. कोल्ड में यहाँ पर मोर देन 5 है. आई विल एक्सप्लेन यू दीज थिंग्स इन लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो, बट ठीक है चलो अभी बता देती हूँ क्यों कोल्ड में, इवन दो ये कोल्ड है बट फिर भी प्रेसिपिटेशन मोर देन 5 क्यों है, और यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑल वैल्यूज क्यों है. क्योंकि कोल्ड को बेसिकली दो चीज में डिवाइड कर सकते हैं अपन लोग. एक है तुम्हारा सनी, कोल्ड एंड सनी वेदर, कोल्ड एंड ड्राई वेदर. तो अगर अपन लोग सनी ले रहे हैं इट मीन्स वहाँ पर जैसे तुम्हारा, चलो मैं लेटर पार्ट में ही एक्सप्लेन कर देती हूँ, अभी बस ये वैल्यूज समझो. अब आ जाओ यहाँ पर कंपोजिट. देखो कंपोजिट के लिए क्या है ना, ये एक स्टार मार्क है क्योंकि देखो कंपोजिट इज समथिंग लार्ज वेरिएशन. यहाँ पे आपका हॉट एंड ड्राई भी है, कोल्ड भी है, कभी वार्म एंड ह्यूमिड भी है. तो क्या होता है ना कि नॉर्मल रेंज से 6 महीना तक अगर वो नॉर्मल रेंज के अंदर फॉलो नहीं होता है कोई भी टेम्परेचर, तो इट ऑटोमेटिकली कम्स अंडर योर कंपोजिट वेदर, कंपोजिट क्लाइमेट. करेक्ट. अगर वी सी द स्केल फॉर अप टू लाइक 6 मंथ्स, 6 मंथ्स तक अगर ये नॉर्मल वैल्यू से बाहर है, बाहर का कुछ मेरा रेटिंग आ रहा है, सपोज मेरी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कभी किसी मंथ कम हो गई, कभी मेरा प्रेसिपिटेशन उस मंथ बहुत ज़्यादा हो गया, तो एक सर्टेन ये डिफाइन नहीं कर सकते थे कि वो हॉट एंड ड्राई में आ रहा है कि कोल्ड में आ रहा है. तो जस्ट फॉर दैट वी क्रिएटेड अनदर टाइप ऑफ क्लाइमेट दैट इज द कंपोजिट. तो उसका ये कंडीशन है कि 6 महीने तक अगर वो ये सब फॉलो नहीं कर रहा है तो इट कम्स अंडर द नेक्स्ट टाइप दैट इज योर कंपोजिट. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ क्लियर डेज इन अ मंथ. व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि तुम्हारा स्काई कंडीशन कैसा है. ठीक है, तो अगर ड्राई है तो स्काई कंडीशन कैसा होगा, क्लाउड तो फॉर्म ही नहीं होगा. तो मोर देन 20 डेज इन अ मंथ, लाइक मोर देन 20 डेज आउट ऑफ 30 डेज योर स्काई कंडीशन इज क्लियर. ठीक है. ह्यूमिड है तो लेस देन 20 होना चाहिए. क्यों लेस देन 20? क्योंकि बारिश तो होगी ही. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द स्काई कंडीशन विल बी क्लाउडी. ठीक है. अब नेक्स्ट आ जाओ टेम्परेट. सो इट इज अगेन लेस देन 20 क्योंकि आई टोल्ड यू बारिश भी हो सकती है, फिर सनी भी, लाइक अगर सन का कंडीशन देखे तो इट विल बी हॉट और वार्म, और फिर बारिश भी हो सकती है तो ह्यूमिडिटी भी रहेगा. सो अगेन इट इज लेस देन 20. कोल्ड में आ जाओ मोर देन 20. ठीक है, मोर देन 20 इज योर क्लियर मंथ, क्लियर डेज इन अ मंथ. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर the chart which is given in the NBC and you should know the basic value. और सबसे important है ये कि temperate में what is the range? So this is 25 degree Celsius to 30 degree Celsius. ठीक है. Okay, now let's start with the very first type of climate, that is the hot and dry climate. तो as I told you, with the name itself, hot means temperature बहुत ज़्यादा होगा and dry means humidity बहुत कम. humidity कम तो precipitation भी कम. Fine. So let's write here temperature. So temperature is more than, you have to follow that chart which is given in that NBC 2016. So temperature is more than 30 degrees Celsius. Then humidity, as I told, it is less than 55. Okay, 55%. So it means it has less moisture content. Now precipitation, so less moisture, so precipitation will also be less. So it is less than 5 millimeter per month. Correct. So all these things, all this data are retrieved from that chart which I discussed earlier. Now see, अब इससे अपन लोग कनेक्ट करके आगे क्या अपना रिक्वायरमेंट है और क्या सोल्यूशन है वी आर गोइंग टू सॉल्व. अब देखो, क्योंकि यहाँ पर मैंने बोला ड्राई है, ह्यूमिडिटी कम है, तो स्काई कंडीशन बताओ कैसा होगा. इट विल बी क्लियर.
ठीक है, स्काई कंडीशन क्लियर, ठीक है। अब आ जाओ विंड कंडीशन। एज आई टोल्ड यू, यहाँ पर ड्राई है और ह्यूमिडिटी भी कम है, तो विंड कंडीशन क्या होगी, बहुत ही हाई वेलोसिटी की विंड होगी, करेक्ट, हाई वेलोसिटी विंड एंड इट विल बी डस्टी, ठीक है। तो ऐसा कोई स्टेट बताओ जहाँ पर हॉट मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी और बहुत ज़्यादा विंड हो। तो इट इज़ बेसिकली योर राजस्थान, सम पार्ट ऑफ गुजरात, ओके या राजस्थान एंड सम पार्ट ऑफ योर गुजरात, करेक्ट। देखो दिस वाज आस्क्ड इन लाइक, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे KCET 2014 में, 2017 में एंड इन फैक्ट DMRC में भी इसके ना सॉल्यूशन और कुछ इस तरह के कि विंड वेलोसिटी कैसा होगा, एवरीथिंग इट वाज आस्क्ड, या फिर कौन सा स्टेट तुम्हारा हॉट एंड ड्राई है, तो यू शुड नो दैट, ओके। तो अब आ जाओ नेक्स्ट, वेजिटेशन कैसा होगा यहाँ का, राजस्थान में बताओ कैसा वेजिटेशन है। More of the cactus and we can see very less flora is there, so vegetation is like very less। क्यों? क्योंकि precipitation बहुत कम है, precipitation कम है means rainfall कम है, rainfall कम है तो soil उतना ज़्यादा productive या fertile नहीं है, so less vegetation, correct। So yeah, after this now come to the requirement part। now what is the requirement, अगर हमें ऐसे जगह पे रहना होगा तो we have to think कि कैसे अपन लोग हीट लॉस को कम करें। तो अपना पहला रिक्वायरमेंट है कि हीट लॉस को मिनिमाइज करना है, ठीक है, ओके, हीट गेन को मिनिमाइज करना है, आई एम सॉरी, जो हीट गेन है जिससे बिल्डिंग मेरा हीटेड अप हो रहा है उसको कम करना है, हीट लॉस को प्रमोट करना है, ठीक है, हीट लॉस को प्रमोट करना है, ठीक है। नाउ तो इसमें क्या क्या मेजर रोल प्ले करता है, तुम्हारा ओरिएंटेशन ऑफ द बिल्डिंग, मतलब हमें बिल्डिंग को इस तरह से ओरिएंट करना है, इस तरह से उसे प्लेस करना है उस पूरे स्ट्रक्चर पे कि वो उसके पास सन का रेडिएशन ज़्यादा ना पड़े। एज यू नो दिस इज नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, करेक्ट। तो सन का डायरेक्शन क्या है, ईस्ट टू वेस्ट, और वो थोड़ा सा साउथ की तरफ इंक्लाइंड होके जाता है, करेक्ट। तो अपन लोग ऐसा रखेंगे बिल्डिंग का ओरिएंटेशन कि ज़्यादा एक्सपोजर ऑफ सन से वो बचा रहे, ठीक है। सो दिस इज योर एक्सपोजर ऑफ अर्थ। फिर अब आ जाओ, वी विल यूज मोर ऑफ द शेडिंग एरियाज। Shading areas as in we have to use proper chhajjas, then we can go for more of the tree plantation, ठीक है, tree plantation। now see, tree will act as a filtering object, suppose एक dusty wind आ रही है या जो भी, so this is the wind direction, यहाँ पर अगर कोई tree है तो it will come and you know collide with the tree। अब इसके बाद जो विंड आएगी वो जो भी यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स है दैट विल गेट सेटल डाउन सम ऑफ देम, तो यहाँ पर फिल्टर्ड विंड आएगी, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस ओके, तो आपका शेडिंग एरियाज में ट्री हो गया, ओरिएंटेशन हो गया। नेक्स्ट यू हैव योर थर्मल इंसुलेशन। थर्मल इंसुलेशन पे बहुत वर्क करना है क्योंकि वी डोंट वांट एनी एक्स्ट्रा हीट, no extra heat or no like heat we require inside our house। so what we will do, we will build thick walls, ठीक है, वहां पर thick wall build करो, you will get a proper thermal insulation। next है ventilation, ठीक है, अपन लोग क्या सोचेंगे वेंटिलेशन के बारे में भी, ठीक है।
कि अपन को प्रॉपर वेंटिलेशन देना है वहाँ पे, करेक्ट, लाइक प्रॉपर फ्लो ऑफ विंड, क्रॉस वेंटिलेशन दे सकते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट वी हैव, हाँ देखो अगर सरफेस पे डार्क कलर होगा ना तो इट हैज़ अ टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब हीट, ठीक है। तो वी हैव टू गिव सरफेस पे लाइट कलर। दूसरा वी कैन यूज चाइना मोजाइक टाइल्स, ऐसे होते हैं ना छोटे छोटे चिप्स, तो चाइना मोजाइक टाइल्स जो छोटे छोटे चिप्स के एमलगमेशन से बनता है, सो वी हैव टू यूज दैट टाइप ऑफ टाइल्स बिकॉज उसका जो रिफ्लेक्टेंस पावर होता है ना वो ज़्यादा होता है, इट इज़ नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट ऑल द हीट, करेक्ट। नेक्स्ट एक और सोल्यूशन दे सकते हैं, सी क्योंकि ये हॉट है तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी एयर है इट हैज़ अ टेंडेंसी, हॉट एयर हैज़ अ टेंडेंसी टू गो अप, तो घर के ऊपर में वी कैन प्लेस द विंडो एंड एवरीथिंग, तो जो भी हॉट एयर है वो, ये सपोज हॉट एयर है तो इट हैज़ अ टेंडेंसी टू गो अप, सो इट विल मूव आउट थ्रू द विंडो प्लेस्ड एट द अपर साइड, करेक्ट। ये हो गया नाइट वेंटिलेशन का। तो लाइक प्रॉपर वेंटिलेशन का यहाँ पे वी कैन वर्क फॉर इट। क्या ड्राई है तो अपन को यहाँ पे ध्यान रखना है कि ह्यूमिडिटी एक बने क्रिएट हो वहाँ पे, तो फॉर दैट ह्यूमिडिटी वी कैन गो फॉर द आर्टिफिशियल पॉन्ड, वी कैन गो फॉर द आर्टिफिशियल वाटर पॉन्ड विच वी कैन क्रिएट इनसाइड आवर होम। तो मतलब कुछ ऐसा कोर्टयार्ड रीजन में, ताकि सपोज यहाँ पे वाटर पॉन्ड है, यहाँ से ड्राई एयर आया, आई एम राइटिंग ड्राई एयर एज DA, इस वाटर सरफेस से ये कोलाइड होगा एंड वॉट एवर द एयर विल गो आउट इट विल कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट इन इट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब ये जो एयर घर पे जा रहा है इट इज ह्यूमिडिफाइड, ठीक है, इट इज ह्यूमिडिफाइड, करेक्ट। So these are the things which you have to follow for the hot and dry climate, correct? Okay. To the next one, that is the warm and humid climate. ठीक है, तो temperature warm and humid, warm थोड़ा temperature higher side में ही रहेगा, so it is more than 30 degrees Celsius. Relative humidity, because I told you it's a humid climate, ठीक है, तो उसकी relative humidity भी ज़्यादा होगी क्योंकि वहाँ पे as the name itself is saying, it's the humid climate, right? Now the precipitation will also be high क्योंकि water content air में बहुत ज़्यादा है, तो you know whenever it will form more of the clouds and whenever it will condense, so more of the rainfall, correct? तो precipitation भी ज़्यादा है। sky condition बताओ कैसा होगा, clear या not clear? It will be cloudy, correct? It will be cloudy and number of clear days in a month, it will be less than 20 क्योंकि most of the time वो cloudy रहेगा, ठीक है। अब आज requirement क्या है मेरा, मतलब प्रॉब्लम क्या है इस टाइप ऑफ क्लाइमेट के घर पे रहने में, तो वहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा हीट होगा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगा, तो अपना प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि हीट गेन को रिड्यूस करना है और जो भी ह्यूमिडिटी है उसे भी रिड्यूस करना है, करेक्ट। तो अपन लोग सोल्यूशन देखेंगे कि अपन बिल्डिंग को ऐसा ओरिएंट करें कि उसका जो सरफेस एरिया है वो सन रेडिएशन से लेस एक्सपोज्ड रहे, ठीक है, वो लेस एक्सपोज्ड रहे। बिल्डिंग डेंसिटी बिल्कुल कॉम्पैक्ट पैक नहीं करना है, थोड़ा दूर दूर रखेंगे अपन लोग, ठीक है, सो दैट कि प्रॉपर वेंटिलेशन हो जाए, ठीक है। तो इट विल बी स्प्रेडेड। थर्मल इंसुलेशन बिल्कुल देना है क्योंकि वार्म है, तो थर्मल इंसुलेशन जब देंगे तो वी विल गो फॉर द थिकर वॉल्स, ठीक है। चलो हाँ, अब यहाँ पे ह्यूमिड है, बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेशन हो रहा है, तो नेक्स्ट यहाँ पर रूफ कैसा, प्लेन जाएगा? नहीं, यहाँ पे फ्लैट रूफ नहीं जाएगा, यहाँ पर स्लोपी रूफ जाएगा। स्लोपी या पिच्ड रूफ जो ऐसे होता है ना, तो जो भी वाटर यहाँ पे रेनफॉल के टर्म्स में आएगा दे विल फॉल ऑफ, ओके। सो वी नीड स्लोपी रूफ, ठीक है।
प्रॉपर वेंटिलेशन देंगे अपन लोग, ठीक है। नाउ सी, ह्यूमिडिटी कम करना है तो क्या यूज़ करेंगे? डी ह्यूमिडिफायर करके मशीन आती है, वी हैव टू यूज़ दैट। फाइन, अब आ जाओ नेक्स्ट। ओके, लेट मी सी। हाँ, वार्म है, अगेन वी कैन यूज़ दैट टाइप ऑफ पेल कलर्स ऑन द वॉल सरफेस, और चाइना मोज़ाइक टाइल्स यूज़ कर सकते हैं। वाई चाइना मोज़ाइक टाइल्स? बिकॉज इट हैज़ हाई रिफ्लेक्टेंस इन इट, ठीक है। तो ये लेस एब्जॉर्प्टिव है, ये दोनों ही लेस एब्जॉर्प्टिव एंड हाई रिफ्लेक्टेंस, हाईली रिफ्लेक्टिव है। फाइन, सो बोथ ऑफ दीज आर हाईली रिफ्लेक्टिव, ठीक है। तो हीट गेन ज़्यादा नहीं हो पाएगा, करेक्ट। अब आ जाओ, वेंटिलेशन दे दिया, फ्री पैसेज ऑफ द एयर मूवमेंट के लिए डेंसिटी भी स्प्रेडेड है बिल्डिंग की। और मेन जो इसमें पूछा गया था कि हाँ स्लोपी रूफ देंगे, दिस वाज आस्क्ड इन KCET। देखो किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, एक बार ओरिएंटेशन पे आया था गेट 2015 पे, ठीक है। तो एक्चुअली तुमसे ये सारे डेटाज नहीं पूछेगा, तुमसे पूछेगा कि अगर स्लोपी रूफ दे रहे हैं तो किस टाइप ऑफ क्लाइमेट को सूट कर रहा है, ठीक है। अगर डी-ह्यूमिडिफायर यूज कर रहे हैं तो फॉर विच टाइप ऑफ क्लाइमेट। सो दीज थिंग्स आर connected, that you should know the features for every climate. Fine. And yeah, you can take the example like Trivandrum, ठीक है, then Mumbai, ठीक है, Chennai. So all these things have warm and humid climate. Clear? Okay. Okay, so the next one we have the temperate climate, that is the third one. तो इसमें basic चीज़ जो हमारा important है, that is your temperature difference, that is 25 to 30 degrees Celsius, ठीक है। Relative humidity and precipitation, number of clear days, I have taken it from the chart which I gave you earlier in this video. तो बेसिकली देखो, टेम्परेट है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हम लोग को किस दो चीज़ पे फोकस करना है कि हीट लॉस जितना प्रमोट हो सके, जितना हीट तुम्हारा बिल्डिंग से डिसिपेट हो सके, और हीट गेन को कम रखना है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल बेस्ट यू कैन सी इन द मुंबई एंड कोलकाता। और बेसिकली जो डिज़ाइन कंसिड्रेशन है, वॉट एवर आई हैव डिस्कस्ड फॉर द हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट एंड वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, यू कैन यूज़ the required design facilities or considerations here, जैसे orientation of the building कि less surface exposed हो, जो sun radiation से थोड़ा less surface exposed हो. You can use vegetation, you can use for the slopy roof. If too much of precipitation is there, you can go for the dehumidifier because the humidity level is quite high here. Then you can go for the like China mosaic tiles for the proper reflectance and pale color in on your walls for the less absorption of heat. तो heat loss को promote करेंगे अपन लोग, और heat gain भी कम होगा. So accordingly you have to decide that whatever the suitable design consideration are fitting here, you can use here, ठीक है. Now come to the next one, that is the cold climate. Okay, now come to the next one, that is your cold climate. तो cold है, temperature again 25 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, ठीक है, और ये monthly temperatures है. Then you have देखो relative humidity में यहाँ पर है all values, ठीक है. क्यों all values लिखा? क्योंकि cold climate भी तुम्हारा two types of cold climate होता है, एक होता है dry, एक होता है cloudy. When we are saying dry, तो बेसिकली जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, जो श्रीनगर बेसिकली, या फिर हिमाचल प्रदेश तुम लोग देख सकते हो, तो वहाँ पर कैसा है ना, तुम्हारा ड्राई एंड कोल्ड है, ठीक है. बट अगर तुम नॉर्थ ईस्ट, प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट में देखो, जैसे सिक्किम हो गया, वहाँ पे गैंगटॉक हो गया, तो सिक्किम में जो गैंगटॉक है वहाँ पे, तो या फिर अरुणाचल प्रदेश देख लो, तो क्या है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेशन है, लाइक रेनफॉल है,
और इस वजह से कुछ टाइम के लिए वहाँ पे गर्मी रहती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो कोल्ड रहता है, ठीक है। तो इट कम्स अंडर कोल्ड एंड क्लाउडी। तो नॉर्थ ईस्ट तुम्हारा जितना भी वहाँ के स्टेट्स आ गए, तो दिस दैट इज़ वाई वी कंसिडर ऑल वैल्यूज़, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग बोथ द कंडीशंस, ठीक है। अब उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट्स चेंज होगी। अब यहाँ पे कोल्ड है तो अपन लोग को हीट गेन को प्रमोट करना है, ठीक है, ताकि मेरा सरफेस अंदर का पूरा हीटेड रहे, और हीट लॉस को क्या करना है, मिनिमाइज, ठीक है। तो देखो सबसे पहला तो हम लोग करेंगे डबल वॉल इंसुलेशन, ठीक है, क्योंकि जैसे थिक वॉल आया तो वो प्रॉपर इंसुलेशन मतलब क्रिएट करेगा बाहर की इन्वायरमेंट और अंदर की इन्वायरमेंट से। नेक्स्ट वी हैव द वुडन फ्लोरिंग। Now see, wood is the best, we can say better conduction, better uh, uh, way of providing insulation against cold, ठीक है। तो we can go for the wooden flooring. Then slopy roof. Why slopy roof? Because अगर cloudy कोल्ड एरिया का देखेंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो वी हैव टू गिव द स्लोपी रूफ देयर, ठीक है। अब आ जाओ फर्नीचर्स, लाइक अगर ड्राई एरिया है, ठीक है, फर्नीचर्स क्लाउडी वाले जहाँ पे प्रेसिपिटेशन है वहाँ पे नहीं देंगे, जहाँ पर ड्राई कोल्ड एरिया है वहाँ पर हम लोग फर्नीचर्स, मोस्ट ऑफ द वुडन फर्नीचर्स, वुडन फ्लोरिंग, ये सब कंसीडर करेंगे वहाँ पे, ठीक है, बिकॉज wood provides good, or you can say better insulation against cold, करेक्ट, ठीक है। चलो एक और इसके लिए हाँ, एक टेक्निक यूज़ होता है, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट, ये गेट में भी आया था, गेट आई थिंक 2019 में, अबाउट द ट्रॉम्बे वॉल, ठीक है। तो ट्रॉम्बे वॉल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कोल्ड क्लाइमेट में, वहाँ पे जो विंडोज़ भी देते हैं ना, बहुत बड़े बड़े साइज़ का देते हैं इन ऑर्डर टू कैप्चर मोर ऑफ द हीट। तो वाइड साइज विंडो यू कैन राइट टू कैप्चर मोर ऑफ द सोलर हीट, ठीक है। अब आ जाओ ट्रॉम्बे वॉल, यहाँ पे हाँ डार्क कलर का यू कैन गिव वॉल सरफेस, क्योंकि ये क्या होगा, मोर ऑफ द एब्जॉर्प्टिव टाइप। एब्जॉर्प्टिव क्या एब्जॉर्ब करेगा, हीट, ठीक है। चलो ट्रॉम्बे वॉल क्या होता है, सपोज दिस इज योर वॉल, आई एम ड्रॉइंग द सेक्शन हियर, ठीक है। तो ये क्या है, तुम्हारा ब्रिक वॉल है, यहाँ से ये स्लैब निकला तुम्हारा, यहाँ पर विंडो है, ठीक है, ये है घर। तो क्या होता है, विंटर में तुम्हारा सन का हाइट ऑलरेडी लो एंगल से आ रहा होता है, सन का रेडिएशन लो एंगल से, विंटर सन इसे कहते हैं, विंटर सन लो एंगल, ठीक है। तो क्या होगा, इस एरिया को ऐसा एयर, यहाँ पर ना ऐसे ब्लैंक एयर स्पेस होता है ये, ठीक है, यहाँ पे एयर फिल्ड रहता है। नाउ व्हाट हैपन्स, यहाँ से एयर आया, ठीक है, यहाँ से रेडिएशन आ रहा है, ये घर के अंदर का, ये इनसाइड है, ठीक है, यहाँ से तुम्हारा सोलर रेडिएशन आ रहा है, करेक्ट। इस ग्लास के थ्रू यहाँ का एयर है वो हीटेड अप हो रहा है, वहाँ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो यहाँ से हीटेड टेम्परेचर अंदर गया, हीटेड एयर अंदर गया, करेक्ट। और डे टाइम में ये जो वॉल सरफेस है ये भी गर्म होते जाएगा, और नाइट के टाइम पे ये हीट डिसिपेट करेगा, ठीक है, हीट डिसिपेट करेगा। तो वी देखो दिन में तो ये एयर आ रहा है, गर्म हो रहा है ड्यू टू द रेडिएशन, और अंदर हीटेड एयर है, लाइक वार्म एयर है, बट नाइट के टाइम में सोलर रेडिएशन तो नहीं है, तो ये जो वॉल ड्यूरिंग द डे टाइम ये हीट हुआ, वो क्या होगा, उससे रात के टाइम में हीट डिसिपेशन होगा, ठीक है, इनसाइड द रूम, एंड द रूम विल बी वार्म। सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रॉम्बे वॉल, ठीक है, इट वाज आस्क्ड इन गेट 2019, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कोल्ड क्लाइमेट, एंड या okay, now come to the next topic, that is the composite climate.
कंपोजिट क्लाइमेट, ठीक है। चलो, कंपोजिट मीन्स जो तुम्हारा नॉर्मल वेदर कंडीशन है, जो मैंने वो चार्ट बताया था, उसमें से अगर वो प्रॉपरली 6 मंथ का ड्यूरेशन देखते, अगर उससे कुछ भी बाहर का मेरे पास डेटा आ रहा है, लाइक इट इज़ नॉट फॉलोइंग ऑल द गिवन रिलेटिव डेटास, तो फिर अपन लोग उसे नेक्स्ट कैटेगरी में डाल देते हैं, दैट इज़ अ कंपोजिट क्लाइमेट, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा हॉट एंड ड्राई भी कभी कभी किसी मौसम में देखोगे, सुबह में बहुत ही गर्मी है, शाम में बारिश हो जा रही है, ठीक है। या फिर अचानक से कभी ठंड है, ठंड भी बहुत ज़्यादा है कि स्नोफॉल टाइप कंडीशन हो जा रहा है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन है, ठीक है। सो कभी हॉट एंड ड्राई है, कभी वार्म एंड ह्यूमिड है, ठीक है, और कभी कोल्ड भी है, ठीक है, कोल्ड क्लाइमेट भी है। तो ऑल दीज different types of climate can be seen in the composite climate, and the best city example which you can see here is Ranchi, ठीक है। next you have like Delhi, ठीक है, Delhi में भी you can face the similar condition, and of course Bangalore. नो, बैंगलोर को हम लोग टेम्परेट में भी डाल सकते हैं, बट जो बेसिक है वो आपका दिल्ली और रांची है। सी, और दिस वाज आस्क्ड लाइक दिल्ली का क्वेश्चन, इट वाज आस्क्ड इन डीडीए in 2019 that what type of climatic condition is seen in Delhi, so it's composite climate, ठीक है। तो देखो अपना क्या रिक्वायरमेंट है इसमें कि समर, यहाँ पर देखो कभी हॉट भी है, कभी वार्म भी है, कभी कोल्ड भी है, कभी ह्यूमिड भी है। तो व्हाट वी आर सपोज टू डू कि जब समर आए तो हीट लॉस को प्रमोट करना है, करेक्ट, वी हैव टू प्रमोट हीट लॉस, एंड व्हेन देयर इज विंटर तो अपन को हीट गेन पे फोकस करना है, या ये कह सकते हैं कि हीट लॉस को रिड्यूस करना है, ठीक है, और हीट लॉस को यहाँ पर समर में प्रमोट करना है, ठीक है। दीज टू आर बेसिक क्राइटेरिया, करेक्ट। अब आ जाओ, अब हमें हीट लॉस को प्रमोट करना है, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन गो फॉर द मोर एंड मोर नंबर ऑफ वेजिटेशन, ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग। हमें इस तरह से अपने बिल्डिंग के ओरिएंटेशन और शेप को रखना है इन ऑर्डर टू अवॉइड द मोस्ट इन ऑर्डर टू अवॉइड द मेजर एक्सपोजर फ्रॉम द सन, ठीक है। तो ओरिएंटेशन एंड शेप हो गया। वेजिटेशन, हाउ वेजिटेशन विल हेल्प, इट विल प्रोवाइड द शेडिंग, एंड अगर बहुत ही ड्राई विंड आ रहा है, देखो शेडिंग के लिए वी कैन यूज वेजिटेशन। अगर बहुत ज्यादा ड्राई विंड आ रहा है तो इट विल एक्ट एज अ बैरियर, ठीक है, बैरियर फॉर द ड्राई विंड, फॉर द ड्राई विंड। तो जितना भी आपका ड्राई विंड है वो एक तो पहले अगर कोई ट्री है तो वो उससे टकराएगा। इफ सपोज दैट इज मोर ऑफ द डस्टी विंड तो इट विल एक्ट एज द ऑब्स्ट्रक्शन दिस ट्री। सपोज ये आपका ट्री है, ठीक है, यहाँ से आया आपका विंड, क्लियर, तो इट इज एक्टिंग एज अ ऑब्स्ट्रक्शन, करेक्ट। और इसकी वजह से अब जो विंड पास होगी तो दैट विल बी लाइक मोर ऑफ द फिल्टर्ड वन, करेक्ट, इट इज मोर ऑफ द फिल्टर्ड वन, ठीक है। और शेडिंग मिल रहा है, फिल्टर्ड विंड है, और ये एक तरह से ना साइकोलॉजिकली हमें अफेक्ट भी करता है, दैट इट गिव्स अ सूदिंग इफेक्ट टू अस, ठीक है। एक सूदिंग इफेक्ट है कि हाँ इट इज लाइक एक नेचुरल ग्रीनरी है, ठीक है। तो वेजिटेशन प्लेज अ मेजर रोल। ये तो हो गया दो चीज। अब हमें हीट लॉस को प्रमोट करना है, या ये कह सकते हैं कि हमें प्रॉपर इंसुलेशन प्रोवाइड करना है। तो अपन लोग को थर्मल इंसुलेशन के लिए कि सो दैट कि ज़्यादा हीट गेन ना हो पाए, वी हैव टू गिव व्हाट, थिकर वॉल, ठीक है, वी हैव टू गिव थिकर वॉल।
फाइन। और फिर जब वेंटिलेशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए फॉर द प्रॉपर फ्लो ऑफ विंड, कि जहाँ पर प्रॉपर कूलिंग की ज़रूरत है उस एरिया में प्रॉपर कूलिंग हो। और अगर कुछ ऐसा वी मेक सर्टेन टाइप ऑफ थिंग्स कि जहाँ पर हॉट एयर की ज़रूरत है तो प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज योर, हाँ, हीट गेन को, अगेन जब विंटर की बात आएगी तो हीट लॉस को रिड्यूस करना है, राइट। तो हीट लॉस को अगर रिड्यूस करना है तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन गो फॉर द वुडन फ्लोरिंग बिकॉज इट एक्ट एज अ इंसुलेशन, ठीक है। तो इंसुलेशन अगेंस्ट कोल्ड, तो यू कैन गो फॉर दैट। या फिर या अगर तुम्हारा देखो बेसिकली ये सब मैंने पहले बताया है कि क्या क्या यूज़ कर सकते हो। अगर ड्राई है तो यू कैन गिव दैट इवापोरेटिव कूलिंग, पॉन्ड बना दो घर के, वाटर पॉन्ड छोटा सा घर के बीच में, तो वहाँ से क्या होगा, इवापोरेटिव कूलिंग होगी एंड एवरी ऑल द स्पेस विल गेट ह्यूमिडिफाई। अगर ह्यूमिड कंडीशन क्रिएट हो रहा है इन बिटवीन द सीजन तो यू कैन यूज डी ह्यूमिडिफायर्स। कोल्ड कंडीशन है तो यू कैन गो फॉर द फर्नीचर, लाइक more of the wooden structure inside the building because it will act as a insulation against cold, ठीक है। तो you have to think accordingly, और या this thicker wall, vegetation orientation shape, ठीक है। और जो बेसिक क्वेश्चन आता है कि कौन सा सिटी है कंपोजिट क्लाइमेट जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, तो दिस इज योर दिल्ली, रांची, बैंगलोर, क्लियर। Okay, so that's all for your section 3 environment planning. This is the third part and here comes the end of section 3, and there are certain topics which is there in the section B 1.3. Okay, so as I've told you, I have a certain surprise planning for you. So just keep waiting for the next video. I'm going to reveal in that, and by that time keep studying and smash the comment box with #gate hamara hai, and just keep going. Okay, keep pushing yourself every day a bit extra, and uh, just give your 100%. Okay, that's all. Thank you. Bye.